Now we know that chemistry is a branch of science where we study about matter. What is matter made up of? What is its nature, structure, and what changes are observed when it is subjected to different conditions? Chemistry could not be, put forward in a more simpler way. This is the best, you can say, definition of chemistry. It is the study about matter. So chemistry, since it is a study about matter and its nature and its composition and its structure and the different observations which are related to matter when it is subjected to different conditions. Hence, we can say that chemistry is an informative science. Listen to me very carefully what I'm saying over here. This will make your attitude towards studying chemistry very clear. You need a different attitude while you study physics. While you study physics, it is more about thinking, it is more about logic, it is more about problem solving, it is more about visualization, right? It is not more about learning or remembering or memorizing. But chemistry, since it is a basically informative science, it is more about memorizing, about learning, about remembering, about gathering the information. So you need to learn a lot in chemistry. It's not that you don't have to apply your brains. Of course, it's science. You need brains. You need logic. But here, the focus or concentration is more towards information in chemistry. Hence, it is a science related with, memory, or you can say learning, remembering. Always keep that in mind. So, in physics, we always encourage to ask the question why, how, and why. In chemistry, why and how does not matter much. In chemistry, you cannot ask why is it like this, or how it has become like this. There are instances where you get the answers of why and hows in chemistry, but not always. Mostly in chemistry, it is all about what. What means information, right? So with this idea, I would like to, emphasize that in chemistry, stop searching for reason and put your attention towards the information. Don't seek justification for every information which is provided to you. It is worthless. It is about how many informations you can remember and you can memorize and you can learn, right? It's more important rather than remembering all the justification, because there are very few. There are justifications, but they are very few. Okay, so let's proceed with this ideology. So see, everything is made up of matter that we have already studied. An element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substances. So we are more interested in elements over here. All elements are made from atoms, the simplest part, the smallest particle of an element, which represents all the properties of an element. So atom is something of which is pure and which is the simplest or smallest kind of particle which makes up an element. A set of atoms of same type together form the molecule of the element, and molecules can be monoatomic, diatomic, or even polyatomic.
Okay, so let's, without wasting time, they've directly got down to the business, and they are talking about now that what do atoms form when they get together. When atoms of the same particle or different particles, atoms of the same element or the different elements come together in small groups, in a group of one, a group of two, or group of many, they make up molecules, monoatomic molecules. Here I would like to draw your attention to the word monoatomic. The spelling is wrong. Spelling is wrong. Actually, the spelling is monatomic. Monatomic. Meaning is the same. Elements having only one atom in their molecules. Elements having only one atom in their molecules are known as monatomic, not monoatomic. If you want, I can Google it and show it to you. We may get surprised. I'm not sure, but let's see. Let's see. Let's dissect monatomic. Monatomic. So monatomic is combination of two words. Mono and atomic means single atom. Cool. Monatomic gas. So yeah, monatomic is the correct word. What about monoatomic? See, so Google is asking us, did you mean monatomic? So monoatomic is basically a rarely used word. Wikipedia also uses monatomic. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग ने क्लियर कर ली, मोनोएटॉमिक होता है, मोनोएटॉमिक नहीं होता है। तो आप लोग जब लिखोगे ना तो मोनोएटॉमिक ही लिखना, ठीक है। फिर अगर कोई टीचर तुम्हें गलत बताता है तो उसको गूगल खोल के हम दिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई ऑल्सो happen to understand it when I was reading some book, and in your Indian authors they always write monoatomic, but that the book which I was reading was um, about higher standards, not secondary standard, but higher grades maybe, and they wrote it as monatomic. Okay, so elements having only one atom in their molecules are monatomic. For example, see the examples of monatomic molecules and remember them: helium, neon, and other inert gas molecules. They are always monatomic. Diatomic molecule. Di means two. Diatomic means elements having two atoms in their molecules. Hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, bromine. These are all diatomic. H2O2, N2, Cl2, Br2. These are all diatomic because they have two atoms in their molecule. Tetraatomic. Elements having four atoms in their molecules. Phosphorus is one example of tetraatomic. Octaatomic, elements having 8 atoms in their molecules. Sulfur is an example. So we can say that molecule is the simplest particle that has capability to exist independently. So atoms may or may not exist independently. But yes, molecules are the smallest particle which definitely exist independently. The molecules of an element exhibits all the properties of that element. Atoms भी वही करते हैं. Atoms also exhibit the properties of the element. Molecules also exhibit the properties of the elements. But there is one thing I would like to discuss over here, which is elements can have their smallest individually existing particles in the form of atoms or molecules, right? Molecules are monatomic,
diatomic, triatomic, tetraatomic, octaatomic, polyatomic. Compounds also have their smallest individual particles, but they are always in the form of molecules. The molecules of elements, जो elements के molecules होते हैं, they always contain same types of atoms, or they are always made up of same type of atoms. For example, H2, for example, P4. H2 मॉलिक्यूल है किसका? हाइड्रोजन का. कितने एटम्स है उसमें? 2. किसके? हाइड्रोजन के, दोनों. So molecules of elements always contain the same type of atoms, are always made up of same type of atoms. So is true for phosphorus molecule. But molecules of compounds are, what are they? They are smallest particle of a substance, right? Smallest particle of a substance. And they are made up of one or more types of atoms, right? एक्चुअली वन और मोर लिखना सही नहीं है. अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. एंड इसका जो एग्जांपल्स है दैट इज H2O, NaCl. अब H2O क्या है? H2O is the smallest particle of water, molecule of water, which is made up of hydrogen, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. More than one types of atom, right? NaCl. What is NaCl? It is the smallest particle of sodium chloride, common salt, which is made up of 1 atom of sodium, 1 atom of chlorine. अभी समझा? तो मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड के भी हो सकते हैं. बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. When atoms of different elements combine, they form molecules of a compound. When atoms or molecules of different elements combine, they form molecules of a compound. To name a few, कुछ molecule compounds के यहाँ पे वो लोग ने बताए हैं. Sodium chloride, water, ammonia are the molecules of compound, smallest particles of compound. The names of elements and compounds are abbreviated using certain symbols and formulae. The names of elements and compounds are abbreviated. Abbreviated मतलब abbreviation क्या होता है? Abbreviation मतलब short form. तो elements और compounds के नाम को short form में हमें अगर लिखना है तो we have to use certain symbols and certain formulae. इसी को पढ़ना है, symbols and formulae. Symbols and formulae of chemical compounds. We have to study this in this particular class, this particular chapter. So before 1600 AD, see, you might be wondering कि हमको तो स्कूल से ये बुक में से नहीं पढ़ाते, ये कौन सी बुक है? So this is Selena. This is I think by far the best book of chemistry, and it is better than your Viraf Dalal. I always prefer Selena. Even for class 10th I prefer Selena, and many school teachers, they also prefer Selena. Different schools. Why? Because इसमें जो information दी है, that is so accurate and so beautifully described and written that इसको पढ़ के समझ जाता है. Self explanatory book मैं बोलता हूँ इसको. Why? Because the book is very nicely written. हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तुम्हें खुद समझ में आएगा. See, the content, if you talk about the content is the same as the book of Viraf Dalal. तो कोई बच्चा अगर कंप्लेन करेगा, सर ये सर मेरे स्कूल में तो ये बुक नहीं पढ़ाते, ये बुक पढ़ाते, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम चीज पढ़ रहे हो तुम
ऊपर से अच्छे ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ ये अपने माइंड में मत लाओ कि ओ मेरा बुक अलग है, ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम पढ़ सकते हो बिंदास, बिना किसी हेजिटेशन के, और हमारे सारे इश्यूज जो है इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। सो बिफोर 1600 AD अल्केमिस्ट, सी केमिस्ट, ये जो केमिस्ट्री जो वर्ड है ना वो थोड़ा सा मॉडर्न है। इससे पहले जो केमिस्ट्स होते थे उनको अल्केमिस्ट बोला जाता था। अल्केमिस्ट जो वर्ड है ना, ब्यूटीफुल वर्ड है। अगर के कोई इंग्लिश लैंग्वेज में पावरफुल है और उसको पता है, अगर उसने बुक्स पढ़ी हैं तो उसको पता होगा कि अल्केमिस्ट वर्ड आया है एक इंग्लिश वर्ड से विच इज नोन एज एल्केमी। एल्केमी का जो मीनिंग होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, चेंज का मतलब अल्केमी। अल्केमिस्ट मतलब जो चेंज को, जो ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, या फिर द पीपल हु ब्रिंग अबाउट चेंज, दे आर नोन एज एल्केमिस्ट्स। यहीं से वर्ड आया केम, या फिर केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट हु डील्स इन केमिस्ट्री, एल्केमिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो एल्केमिस्ट ने कुछ सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दे use different kinds of methods. They use some pictographic symbols. Pictographic symbols किसने यूज किया ये? डाल्टन, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये यूज किया था। उसने अर्थ को, मतलब बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी ये यूज किया था कि अर्थ को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, और क्रेसेंट सिल्वर के लिए उन्होंने एक सिंबल बनाया, और जैसे सर्कल ऑक्सीजन के लिए, सर्कल विद अ डॉट हाइड्रोजन के लिए। लेकिन तभी जो एलिमेंट्स नोन थे दे वर वेरी वेरी फ्यू। तो ऐसे सिंबल से हमें जब रिप्रेजेंट करना पड़ा एलिमेंट्स को, तो ये इजी था क्योंकि एलिमेंट्स थे गिन के 10, तो 10 सिंबल अलग अलग बना दिए। बट देन एज टाइम वेंट बाय, more and more new elements were added to the list of already known elements, and then this one scientist, alchemist or chemist known as Johann Berzelius, Berzelius ने suggest किया that initial letter of the element written in capitals should represent that particular element. सबसे simplest उसने solution दिया कि भाई अगर ऑक्सीजन है तो why not represent oxygen by O, which is the first letter of oxygen. So O for oxygen, A for apple, B for boy, C for cat, O for oxygen. कितना easy है याद करना. H for hydrogen, C for carbon. ठीक है. बट किसी ने पूछा सर C फॉर कार्बन है तो कैल्शियम को क्या बोलेंगे? तो उसने बोला सिंपल, कैल्शियम का स्पेलिंग क्या है? कैल्शियम का स्पेलिंग है CALCIUM। तो उसने बोला कैल्शियम को बोलेंगे Ca। पहले 2 लेटर ले लो, अगर C कार्बन ने ले लिया है तो कैल्शियम के लिए Ca ले लो। ठीक है। तो उसी तरीके से कोबाल्ट के लिए CO ले लो, C एंड O पहले 2 लेटर। तो फिर कोई आया बोला कि सर कॉपर को क्या करेंगे, क्योंकि कॉपर भी COPPER होता है, तो CO तो कोबाल्ट ने ले लिया है। तो उसने बोला कि जो कॉपर है उसका एक लैटिन नेम हम लोग ढूंढते हैं, और वो होता है क्यूप्रम। और उसके पहले 2 लेटर क्या है? Cu। तो किसी किसी एलिमेंट के केस में हम लोग लैटिन नेम के पहले लेटर या पहले 2 लेटर भी ले सकते हैं। तो वैसे ही सिल्वर के लिए वो लोग ने चूज किया Ag, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज अर्जेंटियम, तो AR नहीं Ag यूज किया। गोल्ड के लिए यूज किया AU,
ठीक है, और प्लैटिनम के लिए यूज किया PT, whereas P and T are the first and the fourth letters, platinum, करेक्ट। तो ऐसे करते 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 सारे एलिमेंट्स जैसे 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 दे गॉट डिस्कवर्ड, उनके सिंबल्स भी बनते गए। ये कुछ सिंबल्स है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुक में भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये सिंबल्स लैटिन नेम वाले जो एलिमेंट्स के सिंबल्स है उनके लिए है। जैसे यहाँ पे अगर नोटेबल सिंबल्स देखो तो लेड PB, प्लम्बम उसका लैटिनम, लैटिनम नहीं लैटिन नेम है, प्लम्बम, ओ प्लम्बम। आयरन, फेरम, नेट्रियम, सोडियम, कैलियम, पोटेशियम, के, तो ऐसे करके लैटिन नेम। और ये सारे कॉमन नेम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। टंगस्टन, वुल्फ्रैम, इसलिए टंगस्टन का सिंबल W है। टिन, SN, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर। सिल्वर का यहां पे नहीं आना चाहिए, सिल्वर का यहां पे आना चाहिए। सिल्वर क्यों यहां पे डाला? हाँ सिल्वर है ना, यहाँ पे है। तो अगर कोई स्टूडेंट, नए स्टूडेंट्स हैं हमारे काफी हमारे बैच में जो 8th में मेरे पास नहीं पढ़े थे, और जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि ऑल दीज सिंबल्स मस्ट बी मेमोराइज्ड। हमने अभी मेमोरी की बात की। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो 9th स्टैंडर्ड में तुम्हें मैं चीज बताना चाहूंगा, दैट इज अबाउट द सिंबल्स। ठीक है, तो देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC. So they had their own system of naming chemicals and naming elements and compounds, and we always follow the guidelines set by this particular organization. तो ये सारे symbols IUPAC से वैलिडेशन उनको मिल चुका है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आयोडीन का सिंबल I ही, नाइट्रोजन का N ही होगा। ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज ऑल दीज सिंबल्स। ये पहला तुम्हारा मेमोराइजेशन का टास्क मैंने बता दिया। ठीक है, chemical symbol. Symbol is the short form that stands for the atom of a specific element, or the abbreviation used for the names of the element. Each element is denoted by a symbol which is usually the first letter of its name in English और Latin. ये सब अभी हमने डिस्कस कर लिया, मैं फिर से इसमें नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल क्या है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल? इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द एलिमेंट, वो तो एक करता ही है रिप्रेजेंट, और क्या रिप्रेजेंट करता है वो? वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर मेरे पास, मेरे सामने एक सिंबल है H, तो मैं बोलूंगा कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास, दैट ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जैसे N का मतलब होता है नाइट्रोजन एलिमेंट, या फिर वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, या फिर 14 पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब तुम बोलोगे सर ये 14 पार्ट्स बाय वेट आया कहां से? तो ये 14 इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो तुम बोलोगे सर ये एटॉमिक मास क्या होता है? तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये आई विल लेट यू नो दिस। ठीक है, हम इसके बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। दिस वेट बीइंग द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बी केयरफुल, यहाँ पे नोट लिखिए, देखो ये विराट दलाल में कभी नहीं लिखते हैं ऐसी नोट। बी केयरफुल तो वो बोलेगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बी केयरफुल ये सब हमको नहीं पता। Be careful about the capital and small letters or alphabets. For example, capital C, small o means cobalt, but capital C, capital O means carbon monoxide, carbon and oxygen, carbon monoxide. ठीक है, तो लेटर्स लिखते टाइम भी यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक।
फिर आता है फॉर्मूला। सो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये मैंने अभी तुम्हें मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले। हमने 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है 8th में। सो केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? प्लीज ये नोट्स आप अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज ले लो ये नोट्स। ये सब अपना फंडामेंटल्स है, ये मैं तुम्हारा सिलेबस नहीं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ ये कोर है, कोर केमिस्ट्री का, जो लाइफ टाइम तुम्हें काम आएगा। लाइफ टाइम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि अपनी बैच में बहुत सारे साइंस या साइंटिफिक ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं जो आगे साइंस में अगर पढ़ने वाले हैं, इफ दे आर गोइंग टू टेक साइंस अहेड, देन इट्स पॉसिबल दैट ये सारी चीजें उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। जो लोग का साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हाँ उनके लिए शायद ये काम ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर वंस लर्नड इन लाइफ एंड रिमेंबर्ड फॉर एवर, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। प्लीज इसको नोट्स ले लो इसकी। द सिंबॉलिक representation of a molecule is known as formula or molecular formula. A molecular formula is also known as chemical formula. Employs मतलब uses symbols to denote the molecules of an element or of a compound. तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं। अभी हमने देखा H2O, 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, इसमें भी एक से ज्यादा एटम्स हैं। एंड इन केस ऑफ कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट एटम्स। कंपाउंड के केस में डिफरेंट एटम्स यूनाइटेड इन सर्टेन फिक्स्ड रेशियो is represented by placing symbols of the elements present in it side by side, indicating their numbers written in subscript. मतलब क्या क्या करना है हमको, देखो। कंपाउंड के केस में जो एटम्स है वो फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। मैं यहां पे एक एग्जांपल के साथ तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। What is water? Water is a compound. It's a chemical compound. What is it made up of? It is made up of hydrogen and oxygen. In what ratio hydrogen and oxygen combine to form water? Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 2:1. Right? So, ये जो certain fixed ratio है, that is absolute truth, very very true for all the compounds. तो हम कैसे इसका सिंबल लिखेंगे? We represent the symbols by placing the symbols of elements side by side, ठीक है। ये H और O साइड बाय साइड लिख दिया, एंड इंडिकेटिंग देयर नंबर्स रिटर्न इन सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सबस्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे नीचे कितने हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो यहां पे लिखूंगा 2 और यहां पे लिखूंगा 1, ठीक है। बट एक चीज, जनरल चीज बताता हूं जो यहां पे अभी नहीं बताई, आगे बताएंगे शायद। 1 को कभी लिखते नहीं, 1 को नहीं मेंशन करते, क्योंकि कोई नंबर नहीं है मतलब 1 ही है। ऑक्सीजन का कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। एंड दैट इज हाउ यू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अभी बताओ ये क्या है जो मैं तुम्हें पूछने वाला हूं। व्हाट इज दिस? NH4Cl। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, Cl क्लोरीन का एक एटम। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड containing 1 atom of nitrogen, 4 atoms of hydrogen, 1 atom of chlorine. Na2CO3 क्या है? What is Na2CO3? Na2CO3 is one molecule of sodium carbonate.
2 atoms of sodium, 1 atom of carbon, 3 atoms of oxygen, all written side by side with their subscript, denotes 1 molecule of sodium carbonate. 2H2O, H2O तो अभी पढ़ा हमने, बट आगे अगर 2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 2H2O. इसका क्या मतलब है? सी, H2O तो हमें पता है क्या है. What is H2O? H2O is 1 molecule of water. आगे सिर्फ 2 रख दिया, इसका क्या मतलब हो जाएगा? 1 को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? 2 molecules of water, not 1. How many? 2 molecules of water. ठीक है, 2 molecules of water. अच्छा, ये भी बहुत नोट करने वाली बात है, मैं यहां पे बताता हूं. अगर मैं लिखता हूं 2H2O, so can you tell me, can you tell the video, can you tell the screen in front of you, can you tell yourself, can you tell your room, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तुम्हारे साथ बैठ के, कोई ऐसा है स्टूडेंट, मुझे जानना है यार, कि जिनके पेरेंट्स उनके साथ बैठ के मेरे वीडियो सुनते हैं साथ में. इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग मैन. अगर कोई ऐसा रियली कुछ है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो, प्लीज ग्रुप में मुझे बताओ. कोई कभी ऐसा हुआ है कि पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने साथ में देखा है, तुमने रियली मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला है कि कुछ कमेंट दिए है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मुझे अप्रिशिएशन ही चाहिए, नहीं नहीं, कमेंट भी चलेगा. ये कि बहुत बोरिंग था यार, ये बहुत लंबा था, बहुत पकाते हैं सर यार, क्या है ये? ऐसा कभी हुआ है क्या? या कुछ भी मतलब साथ में बैठ के अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट ने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द ग्रुप. आई वुड लव टू हियर अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. सो एनीवेज, टेल इट टू योर पेरेंट्स इफ दे आर लिसनिंग विथ यू. मेरा क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला में 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, हम सबको पता है. हाइड्रोजन के एटम कितने हैं ये बताओ, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं ये बताओ. पॉज करो वीडियो, सोचो और बताओ. डन? चलो देखते हैं. तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन के कितने एटम्स है पता है? 2 2s 4. ये जो 2 है आगे लिखा गया वो सबस्क्रिप्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा. यहां पे कुछ नंबर नहीं है, मतलब क्या है? 1. तो 2 1 कितना हो जाएगा? 2. सो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 6 एटम है, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के. राइट? ये भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में. तो अगर मैं लिखता हूं 3H2SO4, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम, सल्फर के कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम? पॉज करके बताओ. डन? हाइड्रोजन के 6, सल्फर के 3 और ऑक्सीजन के 12. 3 4s 12, 3 1s 3 एंड 3 2s 6. टोटल कितने एटम्स हो गए इस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल में? 3 मॉलिक्यूल है बेसिकली. सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, कितने? 15 + 6 21 एटम्स हो गए. करेक्ट? ऑल राइट. So, by looking at the formula, we understand the ratio in which different atoms are united to form the molecules. ये तो सबसे important हमें चीज जानने मिलती है एक फॉर्मूला से. क्या मिलता है हमें समझ में? कि उसमें कौन से एटम्स है, कितने एटम्स है, कितने टाइप के एटम्स है, और वो कौन से रेशियो में एक दूसरे के साथ यूनाइट होके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी प्लीज लर्न कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताई गई. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जो अभी तुम्हारा क्लियर हो रहा है. तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना है इसको. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब रिलेटेड विथ क्वांटिटी. क्या सिग्निफिकेंस है? Both the molecule and the molecular mass of the compound are denoted or signified with the help of molecular formula. It represents the respective numbers of different atoms present in one molecule of the compound, definitely, and the ratios of respective masses of the elements present in the compound. For example,
CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें यह समझ में आता है कि एक कार्बन का एटम केमिकल बॉन्ड के थ्रू 2 ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइंट है। इसमें हमें यह समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक है ना, इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट राइट नाउ। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वैलेंसी क्या है, जो हमने 8th में इतने अच्छे से पढ़ी है, इतनी ब्यूटीफुली पढ़ी है वैलेंसी। ठीक है, जो 8th में मेरे स्टूडेंट थे उनको केमिस्ट्री का इतना स्कोर अच्छा आया उनका, और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ देम बिकॉज उनको ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में क्लियर हो चुका है वैलेंसी क्या होती है। तो मैं फिर से बताने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, और जिसको नहीं पता है वो फिर से पढ़ेगा मेरे साथ, राइट। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। वैलेंसी क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसका कंबाइनिंग कैपेसिटी? एटम का या फिर रेडिकल का। तो तुम बोलोगे रेडिकल क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट रेडिकल। So matter sometimes exists in the form of atoms, but atoms are generally not stable. That means they are reactive. So they react and they combine with other atoms of other elements. And matter can also exist in the form of radicals. तुम बोलोगे सर मॉलिक्यूल तक तो ठीक था, ये रेडिकल क्या है? सो रेडिकल्स आर, और रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट atoms. Radical is a group of different atoms combined together. Radical is a group of different atoms combined together which behaves as a single unit. बहुत सारे अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट atoms of different elements, when they combine together and behave as a single unit, it is known as a radical. तुम बोलोगे सर एग्जांपल दे दीजिए। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा तुम्हें, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इट्स अ रेडिकल। इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4 1+। तुम बोलोगे सर ये 1+ कहां से आया? तो रेडिकल का और एक खासियत यह है कि उनकी एक कॉमन वैलेंसी भी होती है। यहाँ पे एक एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम हाइड्रोजन के, टोटल 5 एटम एक साथ, एक फैमिली एक साथ रहता है, और उनकी एक कॉमन वैलेंसी है। इसी को रेडिकल बोलते हैं। और एक बताता हूं तुम्हें, हाइड्रोक्साइड आयन। तो रेडिकल्स मोस्टली आयन्स ही होते हैं। आयन्स क्यों? क्योंकि उनके पास चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। OH1-, that is hydroxide ion, right? कैल्शियम, आई एम सॉरी, कैल्शियम तो रेडिकल नहीं होगा। पॉजिटिव में तो एक ही है रेडिकल, नेगेटिव में लेते हैं। चलो सल्फेट, सल्फेट आयन SO4 2-। 5 एटम है, 4 ऑक्सीजन के, एक सल्फर का, साथ में रहते हैं और उनकी एक कॉमन वैलेंसी है। इनको बोलते हैं रेडिकल्स। तो ये रेडिकल के ऊपर जो नंबर दिख रहा है ना, वही वैलेंसी है। सो ये क्या है, ये नंबर क्या है, इसको हमें समझना है। सो इट इज दैट नंबर इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और अ रेडिकल।
Valency is measured in terms of hydrogen atoms or oxygen atoms. It is the number of hydrogen atoms or double the number of oxygen atoms that can combine with it. With it मतलब with any atom or radical. किसी भी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो सकते हैं वही उसकी वैलेंसी है. किसी भी एटम के साथ कितने ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो सकते हैं उसको डबल कर दो तो तुम्हें उसकी वैलेंसी मिल जाएगी. Since no other element has combining capacity less than that of hydrogen, its valency is taken to be 1 and is considered as a standard. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी सबसे कम है क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और उसको स्टैंडर्ड मान लिया हमने. बट इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो हमें समझनी है. मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी उसके बाद the number of electrons that an atom can lose or gain or share during a chemical reaction is called its valency. Please इसको नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, तुम्हारी बुक में लिख लो, नोटबुक में. मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी क्या है? The number of electrons that an atom can lose, gain or share during a chemical reaction is called its valency. For details refer to the chapter atomic structure. हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको. Elements with 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell are usually metals. देखो metals के outermost shell में 1, 2 या 3 electrons होते हैं. अगर तुमने मेटल का स्ट्रक्चर याद है 8th स्टैंडर्ड में बताया था मैंने, तो तुम्हें पता होगा. तुम्हें याद है कि इसको क्या बोलते हैं? डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम देखोगे जो लास्ट नंबर दिख रहा है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल. और मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So what do these metals do? These metals can easily donate these outermost electrons present in the outermost shell and can achieve stability. They can attain or achieve stable electronic configuration by donating 1, 2 or 3 electrons present in their outermost shell. जब भी सोडियम या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या वैसे कोई एटम, मेटल के एटम्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा हो जाता है. और दिस इज यू कैन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 2,8 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटायंस. अब क्या होता है? अब ये जो मेटल्स है दे अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय losing their valence electron and they form positive ions. And what are positive ions? Cations. And what are cations? They have positive charge on them. Now the question is why do they have positive charge? आओ इसको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं थोड़ा हमने क्या पढ़ा था. तो let me draw one sodium atom. ये सोडियम की न्यूक्लियस है, ठीक है. ये उसका फर्स्ट शेल है, ये उसका सेकंड शेल है, मेरे शेल्स इतने सर्कुलर नहीं है, आई एम सॉरी. और ये उसका थर्ड शेल, ठीक है. तो ये रहा तुम्हारा सोडियम. ये 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स है 11. तुम बोलोगे कैसे पता सर आपको? तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं किसी भी एटम में. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 8 10 + 1 11. तुम बोलोगे सर कैसे पता आपको? तो मैं ये बोलूंगा कि 8th में बेटा ये टेबल ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया गया है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब बताया है, ठीक है. अच्छा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11, ठीक है. अच्छा, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों सेम है
इसलिए जो सोडियम का एटम है ना, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. But when this sodium atom donates one electron, it becomes sodium ion. Ion मतलब positively charged atom और charged atom basically cation. ये कैसा दिखता है? ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अब हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हो गया 2,8. पहले क्या था? 2,8,1. लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करके अब बन गया है वो Na. अच्छा, प्रोटॉन्स कितने इसमें? प्रोटॉन्स तो होते हैं न्यूक्लियस में, राइट? न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन्स ही हैं क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं आया. इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 + 8 10. बताओ कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है? ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स. सो दैट्स व्हाई सोडियम हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. सोडियम हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो सोडियम का जो वैलेंसी है वो हो गया है 1+, या फिर सिर्फ प्लस लिखोगे तो भी चलेगा. इसलिए ये चार्ज आ गया इसके ऊपर. क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ गया. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया. करेक्ट. सो वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. ठीक है, तो ये सारे कैटायंस हैं. बट वो एलिमेंट का क्या जो नॉन मेटल है? नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन. 4 भी होते हैं कभी कभी, लेकिन हम 5 6 और 7 की बात करेंगे. They are normally non-metals, and to attain stability, they have to have 8 electrons in their outermost shell. So they gain electron. Non-metal के atoms क्या करते हैं? They gain electron. So क्लोरीन में outermost shell में 7 है, उसको 8 चाहिए outermost shell में, तभी वो outermost shell completely filled होगा. ठीक है, ये भी मैंने बताया था लास्ट ईयर. एक फॉर्मूला है which is 2n², which tells you how many electrons can there be in a certain ऑर्बिट. और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, राइट? दैट वाज द रूल. तो ये सारी चीजें हमने 8th में पढ़ी थी. फिर से वही चीजें मैं इन्वोक कर रहा हूं. सो 7 इलेक्ट्रॉन से वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288. बट क्योंकि क्लोरीन के पास इनिशियली 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो पहले न्यूट्रल था. बट अब उसके पास 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दैट्स व्हाई इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज नेगेटिव. इट हैज बिकम Cl- and it is known as anion. देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी है. आउट ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, कार्बन इज नॉन मेटल बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स एंड द रेस्ट आर मेटल्स. इसलिए सिर्फ कार्बन ही है एक ऐसा कि जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उन लोग ने इसके साथ नहीं लिखा है उसको. एनीवेज, ऑक्सीजन कैन gain 2 electrons and complete its outermost shell and its valency becomes O2-. Nitrogen has 5 electrons in its outermost shell and it will gain 3 electrons to complete its outermost shell and to achieve stable electronic configuration, and its valency will become N3-. ठीक है. सो वैलेंसी क्या है? अब उसका नया डेफिनेशन हम रेडी है पढ़ने के लिए. The valency of an element or of a radical is the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical. जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी हमने 1 देखी क्योंकि क्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है बिकॉज इट कंबाइंस विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, नॉट मोर नॉट लेस. कार्बन की वैलेंसी 4 है बिकॉज इट कंबाइंस विथ
4 hydrogen atoms, not more, not less. One carbon can maximum combine with 4 hydrogen. That's why its valency is 4. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी वेरिएबल भी होती है. Certain elements exhibit more than one valency, and that is they show variable valency. What is the reason for variable valency? An atom of an element can sometimes lose more electrons than there are present in its valence shell. That is, there is a loss of electrons from the penultimate shell too. Now you must be wondering, what is penultimate? Penultimate word means last but one या फिर सेकेंड लास्ट बोलते हैं ना हम लोग, लास्ट से पहले वाला. तो अगर सेकेंड लास्ट या लास्ट बट वन या पेनल्टीमेट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो जो वैलेंसी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी. सो ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और वो दोनों में से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए वो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको नोट कर लेना है आपको. इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 different positive valencies, then we use the suffix OUS for the lower valency and IC for higher valency. For example, SnCl2, stannous chloride, is written as tin2 chloride. ठीक है. SnCl4, स्टैनिक क्लोराइड, इज रिटन एज tin4 क्लोराइड. तो अभी ये OUS और IC वाला जो सिस्टम है वो आउटडेटेड हो चुका है. अब हम ये रोमन नंबर्स का यूज करते हैं. अगर वैलेंसी 2 है तो रोमन नंबर 2 डाल देंगे एलिमेंट का नाम लिखने के बाद, टिन के बाद 2 फिर क्लोराइड. फिर टिन की वैलेंसी अगर 4 है तो टिन ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में 4 और फिर क्लोराइड. नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur also show variable valency. Nitrogen and phosphorus exhibits valency of 3 and 5, while sulfur exhibits a valency of 2, 4 and 6. ठीक है. So these are some examples of variable valency, the compounds and their formulae. ठीक है. These are the new formulae. Iron 2 oxide, iron 3 oxide, या फिर फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड. क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड इज बेसिकली कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड एंड सो ऑन. अब रेडिकल्स की बात करते हैं. रेडिकल मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है. रेडिकल क्या है, सीधा डेफिनेशन देखो. अ रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स of the same or of different elements that behaves as a single unit with a positive or negative charge. Radical क्या होता है? It is a group of atoms or group of same atoms or of different elements, atoms of different elements which behaves as a single unit with a positive or negative charge. ठीक है. देखो, Na plus is not a radical because it's not group of atom, there is a single atom here. Mg2 plus is not a radical. ठीक है. यहां पे बोला है a radical is called simple radical when it is atom only like sodium and magnesium, but generally I would not call it simple radical, I would call them ion. Okay, so I don't agree with this word simple radical, I would call them ions. ठीक है. But the radical which I am talking about, which I am interested in, is made up of polyatomic atoms like SO4 2-. मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया. It is made up of 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen, and it has got a single valency 2-. ठीक है. So that was something about radical. Now see, here they are talking about basic radical, acidic radical. I don't want to go over here right now. Right now I want to focus on the list of valencies जो तुम्हें आज का तुम्हारा होमवर्क है, बेसिकली तुम्हें ये लर्न करना है. So in table 1.3
you see the list of some common electrovalent positive ions or basic radicals. जो भी पॉजिटिव आयंस के रेडिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो सब बेसिक होते हैं नेचर में. एंड लिस्ट ऑफ सम कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस विच आर एसिड रेडिकल्स. एसिड और बेसिक अभी याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यू सी हाउ बिग इज द लिस्ट. तो तुम्हें अगर ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि क्या ये सब मुझे लर्न करना पड़ेगा, डेफिनेटली यस. डेफिनेटली ये सारी वैलेंसीज तुम्हें लर्न करनी है with their formulae wherever they are given, in whichever form they are given. You must memorize this. और इसी के बाद हम लोग जाएंगे केमिकल फॉर्मूले के ऊपर. ये सारे केमिकल फॉर्मूले